Friends, ठीक है सर। welcome to our Aapka Radio conference call. So today we are marking our 177 week of this program, which we are doing in our sign every Sunday. We do at 9:30 p.m. Indian Standard Time. So today our guest is Gagandeep Singh Chadha, and he is Secretary of Aam Aadmi Party in Punjab unit. So Gagandeep, welcome to our Aapka Radio call. Thank you so much, sir. So let's start with Hmm. your background, how you came to Aam Aadmi Party, and how your journey has been so far. Well, it all started with the Anna Andolan, the India Against Corruption movement. So I got highly motivated with the way people gathered up and stood against the corruption in the country. And I was a youngster, like 26-year-old guy who was looking the country from a different perspective. And so I got highly motivated, and that motivated me to do something for betterment and change in my own state, Punjab. So I joined the party in, I guess, end of the year 2014 and early start of 2015. Mhm. And from there, my journey began. I started going into the meetings and the protests, and like a normal young guy. And slowly, I started to taking responsibilities of organizing the various uh, events. And slowly I got in touch with Durgesh Patakji, who was the organization building in charge for the national organization building in charge. So he was looking after Punjab at that moment. So he told us to start working on policy drafting. So we started working on policy drafting with the intellectual wing of the Punjab unit. And then came the election manifesto committee. I got a chance to work with all like Ashish Khaitan and Kanwar Sandhu, the people who were running the total Punjab dialogue. So I was a part of that team also. So we drafted the manifesto for 2017 elections. We worked really hard for that manifesto. We had to go to all the government institutions to study out what we could do for the youth, what we could do for the farmers, what we could do for the women and the other sections of the society. So we came up with a very good manifesto. After doing the manifesto, then I got a chance to run the total campaign. I was part of the war room team, and we tried our level best, but due to some certain reasons, we lost the election. And after that, I was appointed as the organization building in charge for Punjab. And then we made the total organization, and the worked for the organization for like 3 years. I was also the official spokesperson of the party for the state. Then previously, after the uh, Lok Sabha elections, we started to rebuild the organization, and once the organization was dissolved, we started again working on the total structure. Then this time Mhm. I've been given the responsibility of working as the state secretary for Punjab. Thank you for that introduction. It's really interesting. Your journey has been really interesting for us, and because since you started your journey from IAC movement, you have seen that one. And how do you see recent farmers movement in Punjab? Do you see any close, or what's your opinion on that? Well, the farmers, you can always relate. It has the same feeling, the same zest, the same spirit that India Against Corruption had. And although that it is particularly more concerned about the issues of farmers only, so it was much required movement of the time, because the farmers in Punjab were, rather, I would not say Punjab, the whole of the country, they've been Mhm. exploited in a very big way. And this very government currently that is under the regime of Mr. Narendra Modi, they've been trying to like what we can say is more word to use is a better way, is to corporate give it in the hands of the corporates. They're trying to just like they're just what they want to do is they want to bring in benefits to their corporate friends.
So they are bringing in all the sectors, all possible sectors under their regime. So farming was something that was blossoming in Punjab. So they are again trying to like bring in the corporate players, big players, and these type of models have already failed. This kind of policies have been brought out in US as well, Europe as well, and they have already failed. Moreover, it has been implemented in various states like Bihar also, and we have a very like visible example that there are certain laborers who are working here who come from Bihar and who work as labor in Punjab. There are people who earn like 4 to 5 acres of land, and they are here working for as a labor for people who own just 2.5 acres of land. So this is what these laws do. They basically steal away the power of negotiating, steal away the power of earning from the farmer and move it to the bigger corporates. So that is what is going to happen in Haryana and Punjab. So the farmers of Punjab and Haryana are not taking it happily. So they had to resent it, and they are doing it in a wonderful way. Yeah. So before actually, I will talk more about the farmers' protest there. So I would like to know like how the AAP Punjab unit participating in this protest. I will definitely share it with you. The bills, the actual bills that were proposed and that came to limelight was in the month of June. That is amidst the lockdown period. Basically, the government, central government was thinking that they can get passed through easily by doing or introducing this kind of laws within the lockdown period, since the country was busy fighting against the pandemic. And as soon as they brought this to light, we have our MP from Punjab, and he is also the president convener of the Punjab unit, that is Bhagwant Mann. And he brought this to light immediately as soon as something was introduced and there was a grapevine of such laws being enacted. And we started our protests amidst the lockdown itself. We were the first political party in Punjab who took up this cause, and we already had started ringing the alarming bell that this kind of thing is going to come up and it is going to deteriorate the lives of the farmers. We protested at various district headquarters. We gave memorandums to the respected deputy commissioners of various districts. We did a lot of activity on ground. We burnt effigies, and slowly. But since we had very less role in like taking down the bills, we could or whatever effort we could put in, we did that. Since we had very less representation in the Lok Sabha, we had only one MP throughout India. In Rajya Sabha, we had 3 people. So we, at every platform wherever this bill was raised with legality, we have opposed it in both the houses, that is in the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. We've been protesting in the state, and despite of that, hanging the democracy of the India, the bill was passed, although there was no majority achieved in Rajya Sabha. Still, it was forcibly passed. Our MP Sanjay Singh ji, he spent a night in the Rajya Sabha. He tried to raise his voice to the fullest, but he was also tried to be suppressed by these dictator rulers. And after that, when the movement started, we started participating in all the farmer protests, and it was a direct call from our state president that we will not try to, like there were other parties who were trying to boycott the event or boycott the struggle of the farmers, and they were trying to showcase themselves in front. Mr. Bhagwant Mann had cleared it on the very first day that we will support the cause of the farmers and we will stay at their back. We will not try to sabotage their movement. We will support them in every possible way. So our leaders, our cadre, our volunteers went into the protest without any party symbol or flag. We supported them in each way. Whenever we got a call from the Kisan unions, they need us to support at some certain point
where they were protesting. So all of the cadre participated, and they did it without party symbol, and all the farmers know it, that the Aam Aadmi Party is supporting them in a big way. And now that all the things have converged to Delhi, we are trying to help them in every possible way, whatever help is required. Let it be langar, the food, the shelter, let it be any other services, medical help or whatever. I am currently running around like 35 plus groups of the volunteers that are already stationed at that borders, and they go in Delhi into the farmers. They get their needs, and we try to get it supplied by the Delhi government and the party workers from Delhi, and we are helping them. That is why he is the only first CM of India that has been allowed by the farmers to come and visit them. And because he also did not try to sabotage the stage or cover their political stage, he went there as a Delhi CM, and for the man he is, Arvind, we all know. So he went there very diligently, and he asked them that, being the CM, I have this responsibility. You people are here, and I need to see कि आप सबके लिए सब प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं है. तो उन्होंने बहुत अच्छे से जाके उनसे बात की, और फार्मर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया. उन्होंने क्या कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारी स्टेज पॉलिटिकल पे भी इंटरफेरेंस नहीं की, और सिर्फ अपने अरेंजमेंट चेक किए. उन्होंने कहा कि पानी की कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसी टाइम पे उन्होंने सॉल्व करवाई. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. That is a positive message for all of the country, that we as APN should feel proud that our Supremo, he went in there and he faced no opposition, while I know plenty of Akali or Congress leaders that went in and they were bullied away, and they were उनके खिलाफ नारे लगे और उनको वहां से भगा दिया गया. So our MLAs are quite, all the Punjab MLAs unit is already staying there along with the farmers in their trolleys as normal people. So that is all what is happening. Thank you. And I think from our side it is a really balanced movement, because many other leaders, they come and try to snatch the stage and they want to address the people, but we have been away from that. Yes, that is what. See, this movement is a very pious movement. It is a purely Kisan movement. There are no political groups, there are no religious groups who are supporting it, and the leaders of these Kisan unions are doing a fairly good job right now by controlling and managing the things in a very proper way. And we do not want to disturb their sentiments. We will do our best in the best way that we can with our limitations. Thank you for that insight from on ground, actually. So, friends, if you have any question, please go ahead and ask. This is Prashant, volunteer from Zurich. Thank you, sir, for joining us. And sir, one question for me from my side. Actually, two linked questions. First question is regarding Punjab's political context. Akali and BJP are no more together. So does this mean that right-wing vote in Punjab will be split into two camps now? This would be advantageous for us in some way for the coming elections. Second question is that in these farmer movements, a lot of left parties have been leading a big chunk of these farmer movements, and at least in the southern Punjab region, left parties have been very strong historically. Do you think there will be a resurgence of left parties, and is there any way in which AAP would want to collaborate with them for the future elections? Yeah, these are the two questions. Thank you, Prashant, for your question. First, coming to your first question, yes, BJP and Akali are no more together. And well, what we need to understand is like Akalis were getting all the rural votes, always. They get the Punjab rural votes that are more of a Sikh-oriented votes, because Akali Dal has always claimed to be a more of a pro-Sikh party. And while BJP was covering their you can say the Hindu vote, so that is the urban vote in the cities. So there's definitely going to be a divide. And now seeing the scenario, it is very much visible that the rural vote is even not going to go for Akalis, because they've lost, they've claimed always themselves to be very pro-Sikh, very pro-Punjab, very pro-farmer. They've always made their governments on the basis of influencing farmers, and they could do nothing.
their own very highly esteemed member of their party, Harsimrat Kaur Badal. He was deputed as the union minister, and she did nothing. She was the food and agro minister for like 10 years, and she did nothing. She did not bring in any project. So the farmers are quite angry about it. So they lost on their rural vote also. Regarding the Hindu vote, there will be a shift. What I think is that there is going to be a very dividing. Akalis are going to lose in the cities, because whatever the Hindu vote they were getting, that was because they used to divide their seats, and they used to tell wherever from wherever Akali is contesting, and they used to tell their BJP cadre to vote for it. But this is not going to happen this time. So the Hindu vote is going to be very undecisive this way. It can go either to BJP and it can also go to us also. So it will depend, and that is what BJP is currently trying to do. They are trying to polarize the situation in the farmer protest. They want to assure, they know that they are not going to get any votes from the rural Punjab. So what they are trying to do is they are trying to polarize the situation and trying to make sure that they get their Hindu vote or the urban vote, and secure some seats to be the kingmakers for the possible government in Punjab in 2022. But we are trying hard, and we will be imbibing more of further activities that influence. We were carrying along a very strong cause, that is of the electricity. Electricity is a very big issue in Punjab. We are the producers of electricity. We are amongst the producers of the electricity, and we have almost the most expensive electricity. So every household and basically more of the urban class is affected by it. They feel it to be like hampering their daily or their monthly budget. So we have been raising that issue. We have been running a Bijli Andolan for that, and we'll be coming to it as soon as the elections are coming. We are again going to take a ride on that. So I am very much hopeful that we lost on the urban vote last time, and we will try to pull in, and this separation of Akali and BJP, we will try to utilize it to our best. And your second question was about the left farmer. See, there are around 30 Kisan unions, the prime 30 Kisan unions that operate in Punjab. Out of that, around 8 are very strong. And out of those 8, the 2 very strong are run by people who are of, you can say they are leftists by mind. So there's a reflection of the leftist thought process in that farmer protest. But frankly speaking, if you talk to the people, more than these Kisan leaders running the show, it is the Kisans, actually the people of Punjab running it. So I don't think so that there's going to be much influence of the left. And it has been time and again done that left was given a chance in Punjab also in 1988, 89's late, like early 90s. But they have never been able to capitalize the situation because of their very, very hard principles. And it is very difficult to run a state with those kind of principles. So I do not think, and I think that Aam Aadmi Party definitely fills in that gap. And people are actually getting that answer, that who is going to be the third possible party or the change that can be a mix of the right and left. So people are seeing Aam Aadmi Party as a balance of both. Right. Thank you so much for your answer. Yeah. It was very detailed. Thank you so much. Yeah. Thank you, Prashant. Now, actually, it's kind of follow-up questions. How do you see among people? Is there any perception change because of this, the farmers movement and electricity movement we did? How people think about this, about different parties? Do they feel any difference? Very, very good question. There's a lot of difference. What difference it has become is that people actually were looking at their leaders. See, the kind of situation a state is, it reflects the situation of the politics in the state. तो अगर हम आज पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि जो आज पंजाब के हालात बन गए हैं ना,
तो कहीं के भी अगर किसी भी स्टेट की हम बात करेंगे या किसी भी कंट्री की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत कुछ निर्भर ये करता है कि कौन से लोगों ने, कैसी पार्टियों ने और कौन सी विचारधाराओं ने उस स्टेट पे, उस कंट्री पे राज किया है या वहां पर गवर्नमेंट चलाई है। तो आज जो पंजाब के हालात हैं वहां के लिए कहीं ना कहीं ये जो लोग पिछले 70 साल से यहाँ पर राज कर रहे थे, टाइम एंड अगेन, 5 years कांग्रेस, 5 years अकाली दल, 5 years कांग्रेस, 5 years अकाली दल, so they brought Punjab to a stage जहां पर we lack employment, we lack agricultural like revolution that used to be present in Punjab, then we lack education, basic facilities, education, health, जो दिल्ली में भी हम बात करते थे, और सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम एक थी ड्रग्स वगैरह की। तो इन चीजों का जो हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ भी माफिया चलते हैं या कुछ भी होता है तो इट इज ऑल पॉलिटिकली पैटर्नाइज्ड। तो आज वो लोग ये सोचते थे कि अब जब बिल्कुल 70 से 80% हमारी जो आबादी है पंजाब की वो खेती पर निर्धारित है, तो आज ये लोग सोचते थे कि ये लीडर अब तो राजनीति छोड़ेंगे और अब तो पंजाब के लिए खड़े होंगे। इन्होंने इस टाइम पे व्हेन पंजाब को सबसे ज्यादा अपने लीडर्स की जरूरत थी, इस टाइम पर भी इन लोगों ने राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हरसिमरत कौर बादल और पंजाब जो ये अकाली दल है, जून में जब से ये बिल आने शुरू हुए थे, ये तब से डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने डिफेंड किया, सितंबर तक आ गए। इन्होंने यहाँ पर चंडीगढ़ में लाकर तोमर जी की मीटिंग करवाई जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, टू टेल द बेनिफिट्स के इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सो दे वर ऑल अग्रीड। तो इनको बिल्कुल लॉज अच्छे लग रहे थे, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वीडियोस हैं। तो आजकल तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, निकल जाता है। पहले तो कोई कहाँ पर क्या बोला है किसी को पता नहीं चलता था। तो इन्होंने खुल के उसकी सपोर्ट की। जब इनके घर के बाहर धरने लगने शुरू हो गए, जब इनको पता चल गया कि फार्मर नहीं मानेंगे, सब कुछ अगेंस्ट है, अगर आज भी हम बीजेपी के साथ खड़ेंगे तो हमें लॉस होगा, पॉलिटिकल अपना गेम देखने के लिए इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया और शो ऐसे किया कि अब हम कुर्बानी दे रहे हैं, ये है। सो वो चीज ना लोग समझ गए। वो नॉर्मली हम ये देखते होते हैं कि हमारी जो भारत के लोग हैं या हमारे स्टेट्स के लोग हैं, वो हम ये मान के चल रहे होते हैं कि उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, कि बड़ी जल्दी भूल जाते हैं जो भी कोई गलत करता है। इस बार नहीं भूलेंगे, इस बार नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिल्कुल अब बात घर पे आ गई है, घर के चूल्हे की आग पे बात आ गई है, बेसिक सर्वाइवल पे बात आ गई है पूरे पंजाब के। तो पहली बात तो इन्होंने वहां पर डिच किया। सेकेंडली, जब ये रिवील हुए फैक्ट्स कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को 2019 से एक हाई पावर कमेटी का मेंबर बनाया गया था, जिसमें ये एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज करने की बात कर रहे थे और उसमें इन बिल्स का जिक्र हो रहा था। तो वहां पर सीएम को बुलाया गया, सीएम वहां पर नहीं गए। ही इज अ वेरी लेजी सीएम, आई नीड टू टेल यू दैट ही डज नॉट लाइक टू गो टू द मीटिंग्स और वेयर एवर ही इज आस्क्ड टू। तो वहां पर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उन्होंने भी आके पूरा शोकेस किया कि हाँ मैं हाई पावर कमेटी में जाके आया हूँ। पहले तो पंजाब को बीजेपी गवर्नमेंट ने उस हाई पावर कमेटी में नहीं डाला। सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं और आप पंजाब को उस कमेटी का पार्ट ही नहीं मान रहे, when we are the people who are giving around 30 to 35% of the produce of the total country. So that was उसका भी इन्होंने एतराज नहीं किया कांग्रेस ने। चलो ये चले गए, तो इन्होंने लास्ट मिनट्स जो मीटिंग के मिनट्स थे वो भी नहीं मांगे। इन्होंने जो वहां पर जो बात हुई, यहाँ पर आकर किसी से डिस्कस करना, किसान जत्थेबंदियों से, पॉलिटिकल पार्टी से, विधानसभा में कहीं ये बात रेज करने की कोशिश नहीं की, वाइल दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच और इनको पता था कि ऐसे बिल्स लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने हाइड किए फैक्ट्स। फिर 19 का इनका इनका वो लोकसभा अनाउंसमेंट हुआ था मैनिफेस्टो, तो इन्होंने खुद ये इन लॉज को वहां पर प्रमोट किया हुआ था कि हम भी लेके आएंगे। तो ये बोलते किस मुंह से। फिर 2020 चढ़ा, कोविड चल रहा था, फरवरी जनवरी के टाइम में इन्होंने अपनी तरफ से फ्रूट्स, वुड और आपके फ्लावर्स, इन पे ये लॉज लागू करके पंजाब में नोटिफिकेशन भी कर दिया मोदी से पहले कांग्रेस सरकार ने। तो वो अब सब फैक्ट्स जब अब लोगों के सामने आ गए, मोर ओवर जैसे आज एक सीएम को खड़ना चाहिए था अपने लोगों के लिए,
Yes. उसने हमें बोला, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई स्काइप पे और बोला है कि मैं एक डेलीगेशन लेकर मोदी जी को मिलने जाऊंगा. ही डिड नॉट टेक दैट. उसको बोला गया टाइम एंड अगेन किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कि हमारी मीटिंग करवा दो मोदी जी से. बीइंग द लीडर ऑफ द स्टेट, इसने वो अरेंज नहीं की. फिर इसको बोला गया कि तू अपने लॉज ले आ, जैसे केरला ने निकाला है या किसी और ने निकाला है कि तुम भी तो कुछ कर सकते हो. तो इसने वो भी नहीं किए अश्योर्ड. अगर सेंटर अपनी तरफ से अश्योरेंस नहीं दे रहा है तो स्टेट दे सकता है. एमएसपी स्टेट दे दे, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट दे दे, उसी प्रोडक्ट से हम अपने एग्रो प्लांट्स लगा लें. हमारे पास बच्चा है इतना पढ़ा हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ता है हर साल. वी हैव फूड एक्सपर्ट्स, वी हैव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, we have the setup, we can do plenty of things, we can bring in revenue for the state. इन्होंने वो नहीं किया. अब जब वहां पर फार्मर्स पहुंच गए, इस लेवल पर पहुंच गए कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर उनकी जिंदगी की बाजी लगा रहे हैं, वो लोग अपने लिए हक मांग रहे हैं. ये जनाब वहां मिलने जाते हैं, अमित शाह को मिलते हैं और वापस आकर बाहर आकर ये कहते हैं कि किसानों का इसको जल्दी से हल ढूंढना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट उठा लेना चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है. तो व्हाट लैंग्वेज इज ही स्पीकिंग? ही स्पीकिंग फ्रॉम द फार्मर्स और अगेंस्ट द फार्मर्स. तो वो तो वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है. तो ये लोगों में मैसेज अच्छा नहीं गया. सो दीज टू बोथ पार्टीज हैव बीन टोटली राइट नाउ रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब. अगर आप सब तो बाहर हैं, मैं वहां सिंगू जाके आया हूँ, वहां पर लोगों ने लिखा कर बैनर लिखा के लिखे हुए हैं कि इस वार, पंजाबी में है कि इस वार पिंडां दे विच ओही वड़ू जेड़ा किसानां नाल खड़ू. यू अंडरस्टैंड कि अब गांव में वही आ पाएगा जो इस बार किसानों के साथ खड़ेगा. और ये दोनों लोग उस चीज पे पूरी तरह फेल हुए हैं. बीजेपी ऑलरेडी एनिमी है. सो ओनली पीपल हु आर सपोर्टिंग एंड हु आर अलाउड ऑन द ग्राउंड आर आम आदमी पार्टी. इट इज अपॉन नाउ अस that we work hard, जो उनकी होप है उस पर हम खरे उतरे, उनको कन्विंस करें कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और हम स्टेट के लिए सॉल्यूशंस लेके आए. वी शुड नाउ स्टार्ट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स. वो हम अपने आने वाले मैनिफेस्टो में भी करेंगे. स्लोली वी विल स्टार्ट द अनाउंसमेंट्स. तो वो उनकी तरफ से मन उनका अभी बड़े क्लियरली विजिबल है. यू मस्ट बी सीइंग द वीडियोस, देयर आर ऑल ओवर द नेट. सो अभी लोगों का मन बन गया है. बस तो ये एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे, हमारे कुछ फार्मर्स भी होंगे, चेहरे होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे हमारी तरफ से. देखिए वो लेट्स सी, जो अभी तक की बात सामने आ रही है तो फार्मर्स तो यही कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ हमारे हक चाहिए. बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट दैट अ फार्मर शुड कंटेस्ट इलेक्शन. What is important is that we should be able to do something for a farmer. We should have some certain blueprint ready that how we can make the agriculture जो sector है उसको beneficial कैसे बना सकते हैं. So yes, if it requires some agriculture people to come up, we will bring them in and we will try to provide solutions. बहुत कुछ किया जा सकता है सर. अभी तो हम ये तो अभी एमएसपी पे ही बात अड़ी हुई है. हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. यहाँ पर मक्की होती है, यहाँ पर कॉटन होती है, कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ सकती है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस आ सकते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटीज बना सकती हैं, इनपुट कॉस्ट कम की जा सकती है. देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड ये है कि वो करने का प्लान हो और नियत हो और एक्सपर्टाइज हो. यहाँ पर कमी नहीं है एक्सपर्टाइज की. नियत हम अपनी दिल्ली में दिखा चुके हैं. तो इफ वी आर गिवन अ चांस तो डेफिनेटली वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी आर रेडी टू टेक पीपल अलोंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पंजाब. So does anyone else have any questions? Please go ahead. Adi, I have a question. It's Vishnu. Thank you so much, Gagandeep, for coming on this call. It's really a pleasure listening to you. I have two questions too. I think the first one will be short. Whenever I listen to election analysis, they keep saying that BJP's organization is the strongest in the country. There's nobody can match it. Like the booth level management, nobody can match. Even in Delhi, they say that BJP's booth level management was stronger than AAP's booth level management. Is it because of RSS that it is so strong that they're able to mobilize? And how are we thinking about booth level management in
Punjab election? That's the first question about organization. The second question is, I'm hearing a lot of criticism that Punjab is protesting a lot for this farmer thing because Punjab's economy is so dependent on agriculture. Other states have diversified into other industries like tech and manufacturing, but Punjab's leaders over the years have not bothered to build other industries. Is there any truth to that, or is that just a talking point on TV? Thank you for your questions and very nice questions, I would say. And सबसे पहले बात करेंगे आपके जो the question was about the BJP having the strongest cadre. See, BJP's cadre is ideology driven, and who gives that ideology? That is RSS. So they have a very clear motive. They are like brainwashed people. Sorry to say that I had to use that word, but it is actually that. They are brainwashed people who have a very single point agenda. They just want to bring in they have कि हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसके लिए जो भी है जो करना पड़ता है, the kind of training they are given, the kind of mindset they are given. So whenever you are building an organization, what binds the organization? One is the ideology. Second is discipline. And these two things, yes, I would say कि बीजेपी के जो काडर है उसमें ये चीज उनके एक तो वो आइडियोलॉजी ड्रिवन होते हैं, ठीक है, और सेकेंडली वो डिसिप्लिन भी होते हैं इन देयर वे अपने लिए, ठीक है. बट उस बात के लिए जो इनका स्ट्रॉन्ग काडर है उसका ये है कि दे ट्राई टू ब्रिंग इन उनका बड़ा एक डोमेन है, उनका डोमेन है रिलीजन. Whatever the issue will be, they will try to bring it to their domain and then play on it. You cannot beat BJP on religion. You only can beat BJP on work. This is what we did in Delhi. They tried their level best with what was Shaheen Bagh. वहां पर यूनिवर्सिटीज पे अटैक करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया. So they tried to bring in all those people. हम एक ही चीज पे स्टक रहे कि हमने काम किया है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है. पानी की बात की थी, पानी आ रहा है. बिजली की मुफ्त की बात की थी, बिजली है. एजुकेशन इंप्रूव करनी थी, वो करती. हेल्थ सेवाएं इंप्रूव कर दी. सो ये बात जो आप कह रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है उनका काडर, उनका स्ट्रॉन्ग है काडर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. पर क्या लोगों को एट दी एंड मैटर क्या करता है? तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद जिस हिसाब से ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली को, तो पीपल माइट फॉल फॉर देयर ट्रैप. पर दिल्ली की जो ये विन हुई है 2020 की, उससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि नो मैटर के कितना स्ट्रॉन्ग काडर हो, कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी आइडियोलॉजी हो, बात इस पे डिपेंड करती है. यहाँ का वोटर के लिए ये मैटर करता है कि भाई मेरे घर में क्या हो रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इनको मैटर ये करेगा कि मेरे को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो देयर इज अ पॉइंट व्हेन पीपल थिंक बियॉन्ड रिलीजन. इट इज व्हेन इट कम्स टू योर ओन हाउस. So that is where we can secure if we try to give a solution to that. Otherwise, yes, they are strong-headed people in BJP, and there is no doubt in that. But the kind of ideology they are driven with, sorry to say, I do not agree with that, or I do not appreciate that. पहली बात तो ये हो गई. सेकंड बात आपकी में जो है कि फार्मर्स की है, इसमें बिल्कुल सच है सर कि यहाँ पर बड़ी बार ऐसे इवेंट्स हुए कि प्रोग्रेसिव पंजाब करके 2-3 बार इवेंट्स इन्होंने करवाए अकाली दल ने अपने टेन्योर में. देन अमरिंदर सिंह ने भी किए. तो पर इन्होंने ना एफर्ट्स बड़े आप मान के चलिए कि बड़े ही वीक एफर्ट्स थे. इन्होंने क्या किया, ये गए, इन्होंने कंपनीज को अप्रोच किया. दे ट्राई टू ब्रिंग इन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. अभी आज से तकरीबन 10 साल पहले इन्फोसिस का कैंपस लाए थे ये मोहाली में. इन्होंने उसको टाइम बाउंड नहीं किया, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, अच्छे से कुछ नहीं किया. वो 10 साल से मोहाली में तकरीबन 50 से 100 एकड़ का कैंपस है और उसको बस उनको 4 दीवारी करके इन्फोसिस ने छोड़ रखा है.
तो अगर आप उनको लेकर आ रहे थे तो क्या आपने उसका R&D किया? आपने कुछ देखा कि वो वाकई कब अपना प्लांट लगाएंगे, कब शुरू करेंगे, कब वो कैंपस बनाएंगे? कुछ नहीं करते, जस्ट टू रोप इन न्यूज़पेपर्स के हाँ जी फलाने को अप्रोच किया गया, महिंद्रा को अप्रोच किया गया, हीरो को अप्रोच किया गया, मारुति को अप्रोच किया गया। अप्रोच करना ठीक है बॉस, बट अगर क्या आप उसको लेकर आ पा रहे हो, उसको मटीरियलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है? अगर आप किसी भी बड़े बिल्डर से पूछ लो, कई अच्छे कॉर्पोरेट से पूछ लो, तो उनका रीजन ये होता है कि ये लोग भाई करप्शन करते हैं, ये शेयर मांगते हैं, हम आते बाद में हैं, ये पहले अपनी डिमांड्स रखते हैं। सो देयर हैज बीन दिस काइंड ऑफ लीडरशिप which has always tried to keep people in this kind of situation. Moreover, we need to understand the nubs समझनी पड़ेगी पंजाब की। पंजाब के जो plenty of youth है ना, they are rural youth and they have expertise in agro. So what we need to do is we can make agro hub over here. It has the potential, this state has a very big potential for being the agro hub for total India. So वैसी इंडस्ट्रीज ये लेके आए। हल्दीराम का मूंग है, अब हमारे यहाँ मूंग उगाने की कोई बात ही नहीं करता। सारा मूंग ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेज की एक फैक्ट्री है, वहां पर आलू पास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कॉर्पोरेट्स लेके आए, फार्मर्स को अच्छी ट्रेनिंग दें, बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, plenty of IT engineers passing down from Punjab. They all work in wherever they go, they work in Gurgaon, Noida, Chennai, Mysore. I was myself a mechanical engineer. I got placed in Accenture. I got placed in Infosys. Where was I supposed to join? They had campuses in Mysore, Chennai. People who were along with me who joined, they've still not been able to come to Punjab because there are no IT as such companies here. So यहाँ पर बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं, काम करना भी चाहते हैं, बट इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए सीरियस एफर्ट्स किसी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किए। तो अगर वो किए जाएंगे, वी हैव प्लेंटी ऑफ लैंड्स, वी हैव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत कुछ पॉसिबल है। बस ये है कि एक ईमानदार और अच्छी सरकार चाहिए और थोड़ी एजुकेटेड सरकार चाहिए जो इस बारे में सोचे। वो सिर्फ इसको एक अनाउंसमेंट तक ना रखे, एक न्यूज़पेपर न्यूज ना रखे कि फलाना ढिमकाना कंपनी को हमने इतना लैंड दे दिया है और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, सी व्हाट तेलंगाना हैज डन, हाउ हैव दे ग्रोन, द काइंड ऑफ पॉलिसीज दे हैव ब्रॉट इन, वी आर डूइंग नथिंग एज कंपेयर्ड टू दैट। वी नीड टू लर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स। आई होप आई हैव आंसर्ड। You have, thank you. I hope we are doing booth level, identifying booth level people in Punjab for the election. Just to yes, we are trying to do that. Thank you so much. Thank you. तो जैसे अगर एक चीज अभी दिमाग में ही मेरे कि 2017 में हम लोगों ने नासा के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, काफी बड़ा मुद्दा था हमारे कैंपेन में, और आपको लगता है कि हम लोग एग्रीकल्चर उस टाइम पे थोड़ा मिस कर दिए, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिए, तो इसलिए हमारा जो रूरल एरिया में पेनिट्रेशन वो था वो कम था? There were some certain what I would say mistakes, political mistakes that we committed in 2017, and what I believe is उस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हम रेदर अगर मैं बात करूं तो नशे की बजाय मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि हम उससे ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन हो गया था कि हम पंजाब की एक ट्रैप है, पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स का ट्रैप है। यहाँ पर पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स चलती है और हम उसमें फंस गए थे। देख रहे थे कि हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, हम अपने अच्छे अच्छे मैनिफेस्टोज बना रहे हैं, रिसर्च करके बना रहे हैं। लोग यहाँ सुनना चाहते हैं कि मैं कड़कर अंदर कर दूंगा, मैं ये जब्त कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उस चक्कर में ना पहले हम इश्यूज पे बात कर रहे थे, तो जब हमें लगा वो बार बार अकालियों ने और कांग्रेस ने हमें अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में फंसाया और खींचा, we also got into politics. Rather than talking about nasha, we started talking about some leader who was involved in that nasha. Rather than talking about unemployment numbers,
वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हम लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करने लगे। वो नहीं करना है, वो इस बार नहीं करना है। हमें इश्यूज की बात करनी होगी। इश्यूज आज भी हैं, इश्यूज उस दिन भी थे, और शुरू हमने ये नहीं था कि हम एग्रीकल्चर पे कंसर्न नहीं कर रहे थे। वी डिड अराउंड, आई रिमेम्बर वी डूइंग 15 to 16 डायलॉग्स विद किसान्स, बिग किसान डायलॉग्स, अपना जिस टाइम पंजाब में 2017 की इलेक्शन में। तो वो हमारा किसान मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था जिस दिन, आई रिमेम्बर बागा पुराना में हुआ था। आई वाज ऑन द स्टेज, अरविंद जी आए थे, 1 लाख आदमी था वहां, मतलब 1 लाख किसान आया था वहां सुनने। तो बहुत अच्छे प्लान थे हमारे, पर लेटर ऑन जाकर हमें किसी ना किसी तरीके उन्होंने ट्रैप किया अपने प्रोपेगेंडा में, जहां पर हमारा एक्सपर्टाइज नहीं था। वी वर एजुकेटेड पीपल, वी वर पीपल हु अंडरस्टूड के पंजाब के लिए क्या करना है। हम बात पंजाब के लिए करने की कर रही थी, उन्होंने हमें लोगों में उलझा लिया। हमारे भी लीडर्स की स्टेटमेंट ऐसी हो गई, मैं उसको पकड़ के अंदर कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये होगा वो। हमें इस बार पंजाब वो नहीं चाहता है। वो कांग्रेस और अकाली अच्छे से कर लेते हैं, एक दूसरे को मलीन कर लेते हैं स्टेज से। हमें, मेरे हिसाब से हमें ब्लूप्रिंट देना है पंजाब की प्रॉब्लम्स का, हमें सोल्यूशन देना है। हमें बात करनी है कि हम पंजाब को खेती में कैसे उभारेंगे, उसके जो फार्मर की प्रॉब्लम है एमएसपी की और प्रोक्योरमेंट की। यहाँ पर बात बार बार एमएसपी की आती है, अकेली एमएसपी की बात नहीं है, बात 100% प्रोक्योरमेंट की भी है, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की भी है, वो लेके आनी पड़ेगी। जब आप अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट और मंडीकरण लेके आएंगे, फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी आएगी, फिर उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स लेके आने होंगे, ये होगा। फिर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो आपको ये फिगर नहीं देना है जैसे अकाली देते हैं या कैप्टन देता है, मैं 50 लाख नौकरी हर घर कैप्टन बनाऊंगा, तो वो नहीं करना है। हमें फैक्चुअल फिगर्स निकालनी होगी, डाटा को पकड़ना होगा, कौन से स्फेयर में, कौन सी फील्ड में, कहां पर क्या पॉसिबिलिटी है। वी विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक टी हब तेलंगाना में है। हमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स को उभारना होगा, तो हमें वैसी चीजें करनी होगी, लॉजिकल बात करनी होगी। फिर उसके बाद बेसिक्स हैं, एजुकेशन का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है, हमें हर इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इश्यूज को साथ लेके चलना होगा। इट कैन नॉट ओनली बी ओनली फार्मर्स, इट कैन नॉट ओनली बी ड्रग्स, it is everything. There are plenty of things that need to be corrected in Punjab, and we need not just shout and like do political narebaji. We need to bring in solutions. लोग थक चुके हैं, वो सोल्यूशन देखना चाहते हैं। वो आपको एज ए तीसरा बदल देखते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि अब आप इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की बात करें। वो हम अभी जल्दी से, वी आर प्लानिंग ऑन दैट, वी हैव वेरी बिग प्लान्स, वी आर प्लानिंग इवेंट्स, वी विल बी होल्डिंग कॉन्क्लेव्स, वी विल बी ब्रिंगिंग इन पीपल who will be talking about these things and bringing in the solutions. उसमें बात करेंगे so that the urban Punjab also clicks as well as the rural Punjab clicks and they know that these people have solutions and we should vote for them. तो अभी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि हमारी अभी आम आदमी पार्टी पंजाब की यूनिट कैसी है, कितने डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम है, और क्या क्या तहसील या जो भी छोटे लेवल की टीम्स कैसे डिवाइड है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन कैसा वहाँ पे? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे मैं आपको बता सकता हूँ बड़े अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारी पार्टी की इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये बात मान के चलिए कि पहले तो हमारी स्टेट लीडरशिप है, हमारे एमएलए लेजिस्लेटिव विंग है। उसके बाद जो बिल्कुल जहाँ से शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं। वी हैव 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, तो हमारे वहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ये भी है कि देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच फॉल टोटली रूरल, विच फॉल टोटली अर्बन। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस भी कुछ ऐसे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जैसे आप मान के चलिए, मैं जलंधर की बात करता हूँ, तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट अर्बन का है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर रूरल का है। तो तकरीबन ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं, उन सबको मिला के मेरा तकरीबन 52 लोगों का स्ट्रक्चर बना। फिर उसके आगे ब्लॉक इंचार्जेस लगाए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है एज पर टेरिटरी, और उसमें 4 ब्लॉक इंचार्जेस लगाए। उनको लगाने के बाद जो मेरा उनका स्ट्रक्चर था वो 468 तक चला गया, प्लस 52 जो पहले थे। अब उसके आगे हर 5 गांवों के ऊपर एक सर्कल इंचार्ज लगा रहे हैं, और एक वार्ड है जो शहर का वार्ड है म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर, उसके ऊपर एक सर्कल इंचार्ज लगा रहे हैं।
तो उसके बाद जब ये मेरा टोटल निकल के आएगा वो ये तकरीबन आप मान के चलिए मेरा 4,500 लोगों का काडर निकल के आएगा, एंड दिस विल बी अनाउंस्ड लाइक इन अ डे और टू. ऑलमोस्ट लिस्ट आ चुकी है. तो 4,500 ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप वुड बी माय स्मॉलेस्ट यूनिट वुड बी अ गांव और अ वार्ड, मोहल्ला, ऐसे करके. तो वो मेरे तकरीबन आप मान के चलिए मेरे 17,000 यूनिट है. तो वो मेरे को एंड ऑफ दिसंबर से पहले मैं कोशिश कर रहे हैं हम बनाने की. तो आप मान के चलिए कि बाय जनवरी आई विल हैव अराउंड 18,000 पीपल आर्मी दैट विल बी डिप्यूटेड इन द मेन बॉडी, and they'll be ready, and then they will be further making 5 to 10 people committees on the booths. उसके अलावा जो adjoining wings होते हैं, youth wing, women wing, farmer wing, वो अलग से बनते रहेंगे. तकरीबन 7 से 8 wing है. तो right now we are standing at around 4,000 people in the new structure जो बन चुका है. तो soon it is going to be around 18,000 people. So उसके बाद फिर और बड़ा करेंगे परिवार को. Every person who is willing to do some good for Punjab, they are always welcome. So what are your duties as secretary? Well, my duties as secretary are I am involved with plenty of things. हम जितना ये स्ट्रक्चर की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनकी स्क्रूटनी, इनकी preparations, holding meetings for that, and then whatever activities are elected, जो भी एक्टिविटी डिसाइड होती है उसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करवाना, दैट इज माय ड्यूटी. इफ देयर इज रैली और सभा करवानी है, कोई नुक्कड़ मीटिंग करवानी है या बड़ी सभा, मतलब आप मान के चलिए अगर आपको पूरे पंजाब में छोटी छोटी 100 से 200 आदमी की सभा करवानी है, या फिर आपको एक कंसोलिडेटेड जगह पर 20-25 हजार आदमी का रैली करवाना है, सो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. दे कॉल मी द रैली मैन. आई हैव टू गेट इट डन. So that is my duty. Then I manage the schedules of all the legislative wing MLAs also. If they have to be sent to some certain event, if they have to be part of some certain state event, तो उनका भी सारा जो schedule है वो मैं देखता हूँ. ठीक है. और सुबह हमारी कॉन कॉल स्टार्ट हो जाती है अर्ली मॉर्निंग. They start at around 8:30, and then there is whatever media line has to be taken today. What kind of activity we can plan on that? उसकी planning और execution ये दोनों parts मेरे पास है. Yeah, this is Jashwant. Yeah, Jashwant, go ahead. Hi Gagan bhai, thank you for your time today. I wanted to ask you, how is your experience working with Bhagwant Mann? He's a convener and he's only MP we have, right, from Lok Sabha. Yeah. So what's your experience working with him? Yeah, about Jashan, talking about Mann Saab. Mann Saab is somebody who is full of energy यार. मतलब he's another level. मतलब मैंने उस आदमी को इतनी मेहनत करते हुए देखा है कि he starts his rallies from like 6:30 early in the morning, goes till 10, and I have seen him के मतलब he's been gathered by crowd. वो मतलब he's available for the party, and he's like हम उनको ना पूरे पंजाब में भी he is the crowd puller. He is the person who people want to listen to, and he is the person who people think is the face of the app, and people want to relate to him. So उनको मैं अगर मेरे को इवेंट सेटअप करने हैं, मैं उनको एक दिन पहले बोलता हूँ कल आपको अमृतसर जाना है, कल आपको उधर जाना है. उनका स्केड्यूल बनता है. आई हैव नेवर सीन हिम के हैम्पर करते हुए उस चीज को. So he's always ready to put in his best of efforts. वो बोलते हैं कि तुम बनाते जाओ मेरे प्रोग्राम और मेरे को बताते जाओ, मैं I'll keep doing it. And whenever he goes on stage, he speaks. Whenever he speaks, we all know that कि उनका एक जिसको आप कह सकते हैं कि USP है कि वो बिल्कुल ना कि आम एक पंजाबी की तरह बोलते हैं, तभी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं. उनको ऐसे लगता है कि मैं खुद बोल रहा हूँ स्टेज से. तो मैंने उनके साथ कई रैलीज अटेंड की हैं. व्हेनेवर ही कम्स टू स्पीक ऑन स्टेज, लाइक फोन्स कम अप लाइक दिस. मतलब यू सी व्हाट यू ऑल यू सी इज मोबाइल लाइट्स. एंड आई सीन लाइक पुलिस वाले भी जो ड्यूटी पे होते हैं वो भी बोल देते हैं कि अभी हमें डिस्टर्ब मत करना, भगवंत मान बोल रहा है, हमें उसको सुनना है. तो ही इज अ ट्रेमेंडस क्राउड पुलर. As in effort, he puts in his best of efforts for the party. He's always available for the party.
leads like a leader, and he keeps the cadre also highly motivated. Never partial to anybody, मतलब partiality वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते. बड़ा अपना स्पेसिफिक सा अपने तक लिमिटेड रखते हैं, अपना जो उनका रोल है उसी तक लिमिटेड रखते हैं. तो he's a very good party president so far. Yeah, I just asked you because we would like to request him to come on Aapka Radio sometime soon. So I just wanted to. मैं कल बात कर लूंगा उनसे. मतलब Thank you. I'll try it as early as possible. Since he is currently in Delhi now, he also held a press conference today from Delhi. तो जब भी थोड़ा पंजाब आ जाए, let this thing pass and I'll try to talk to him. And soon वो आप सबके रूबरू हो, मैं भी चाहूंगा आपसे बात करें सबसे. Thank you भैया. गगन जी, मतलब एक और सवाल था मेरा कि हमारे 20 विधायक है ऑलरेडी पंजाब में. तो जैसे हमने काफी अपना हमारा एजुकेशन मॉडल और अपना हेल्थ केयर मॉडल काफी फोर फ्रंट पे रखा दिल्ली में. क्या ये विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने फंड्स के साथ कोई स्कूल्स इंप्रूव कर पाए, कोई हॉस्पिटल्स बनवा पाए, कोई क्लिनिक्स खड़े कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो क्या अड़चने आई इनके सामने कि वो अपने एरिया में नहीं कर पाए ये चीज? और दूसरी बात ये है कि इंडिया के पूरे पॉलिटिक्स में लेडीज का, विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है. क्या इस बार के इलेक्शन में जो सीट कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें क्या विमेन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ. बात यह है सर कि जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके पता करें, दे आर डूइंग अ फेयरली गुड जॉब. उन्होंने काफी कुछ अच्छे से किया है. बट सिंस एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये थोड़ी सी हमने इस बार हार कर सीखी है ये बात कि जो प्राइम गवर्नमेंट होती है ना, जो भी पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही होती है, दे शुड एक्ट के उनको ट्राई करना चाहिए कि ओपोजिशन को एक अच्छा फेयर रोल प्ले करने दें और उनको अच्छा चांस दे डेवलपमेंट के लिए. बट पंजाब में ऐसा माहौल नहीं था. मतलब हमारे लोगों ने बहुत कुछ अपने एरियाज में करने की कोशिश की. जहां पर उनके लिए फ्री विल थी, फ्री गो थी, वो कर सकते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया. जहां पर वी हैड टू गो टू द गवर्नमेंट टू गेट इट डन, दे क्रिएटेड लॉट ऑफ हिंड्रेंसेस. जैसे आप देख रहे हैं कि वहां पर प्रॉब्लम आई, गवर्नर साहब रोक लेते थे अरविंद जी को काम करने से काफी. तो यहाँ पर काफी, जैसे कि कोई भी आपने काम करवाना है तो इट इज गोइंग टू बी अंडर सम सर्टेन मिनिस्टर. तो इशू हमारे एमएलए ने रेज किया, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए बात की. बट वहां का जो मिनिस्टर था हमारी पंजाब गवर्नमेंट का, उसने उस चीज को कर तो दिया, बट करवाया खुद आकर कि हमारे एमएलए को क्रेडिट ना मिले. तो हमारे आप मानेंगे नहीं कि हमारे जो एमएलए हैं उन्होंने बहुत से, मतलब दे हैव डन वेरियस रिपेयर्स डन इन द स्कूल्स, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आए. भगवंत मान जी ने वेरी गुड एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की हैं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड की हैं. ही इज गिवन जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, उनके लिए स्कूटर्स वगैरह का अरेंजमेंट किया. गांव में आप आके देखिए, गांव में बड़े अच्छे से लाइब्रेरीज बन गई हैं. बच्चों के लिए जो ये यूथ के लिए स्पोर्ट्स क्लब हैं, उनके लिए किट्स दी गई स्पोर्ट्स के ओरिएंटेड. तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं. जैसा पंजाब चाहता था, हमारे लोगों ने अच्छा काम करने की कोशिश की है. काम अच्छा हो गया है उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. बस हमें क्रेडिट ये है कि बट लोग जानते हैं कि हमने एमएलए से बात की थी, एमएलए ने एस्केलेट की. वो मंत्री है कि आ जाता है और वो ये कहता है जी क्या इनोग्रेशन, वो हुआ नहीं था. जैसे कि मेट्रो का सारा काम करवा रहे थे अरविंद जी और इनोग्रेशन आकर अमित शाह जी कर रहे हैं. तो वही चीज यहाँ पर होती रही है कि हाँ, तो वो यहाँ पर भी होता है क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी. तो जिस लेवल पर ये अपने लेवल पे अच्छा काम किया है, इन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं. और सेकंड बात रहती है जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात है, बिल्कुल ठीक है. तो इस टाइम पे मैं तो ये मानता हूँ कि ऑल जेंडर्स आर इक्वल. और जो हमारे बहनें हैं, जो हमारी वो हमसे बेहतर तरक्की कर रही हैं एंड बहुत अच्छे से आगे आ रही हैं. और हम चाहते हैं कि वो और आगे आए. और
सबसे बड़ी बात देखने के लिए हमारे ट्रेड विंग जो था प्रीवियस विंग में, तो ट्रेड विंग पूरे पंजाब का जो व्यापारी विंग था उसकी हमारी जो प्रेसिडेंट थी वो नीना मित्तल थी. तो शी वाज अ लेडी, शी वाज हैंडलिंग द होल ऑफ द ट्रेड विंग फॉर पंजाब. तो उसमें सबसे आगे थे. हमारे यूथ विंग में लड़कियां हैं. हमारे CYSS जो स्टूडेंट विंग था उसमें भी हेड में लड़कियां हैं. तो हमारी हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन रहती है. आज की डेट में भी मैं अगर बात करूं अपने MLAs में, वी हैव रुपेंद्र कौर रूडी, वी हैव बलजिंदर कौर जी प्रोफेसर हैं, वी हैव सर्वजीत कौर मानुके जी, 3 MLAs हैं हमारी जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं. हमारे विमेन विंग के जो हेड थे राजलाली गिल, शी वाज आल्सो वर्किंग वेरी नाइसली इन मोहाली. हमारे जीवन जोत जी हैं, शी इज रनिंग एकोशी करके, वो she was also the co-president of the women wing. She is running a proper campaign on sanitary pads in Punjab. She is doing a wonderful job through her trust by the name of Ekoshi. So we have good faces with women. We have Neena Mittal ji. We have plenty of good other women who are bringing up. यहाँ पर ना पंजाब में थोड़ा सा दिल्ली के कंपैरेटिवली एक टैबू रहा है कि घर पे यहाँ पर वुमेन को इतनी पॉलिटिक्स में आने नहीं देते. और सेकेंडली अगर जैसे कोई लेडीज डोमिनेटिंग, ये शुरू कहाँ से हो जाता है, ये बिल्कुल छोटे लेवल पे जहाँ पर पार्षद होते हैं, MCs होते हैं, तो वहां पर लेडीज रिजर्व्ड वार्ड बनाए गए हैं. तो वहां पर लेडीज चुनी भी जाती हैं MC, बट आप जब उनके घर पे साइन करवाने जाते हो ना तो उसका हस्बैंड बैठा होता है स्टैंप लेके. तो वो कहते हैं मैं ही MC हूँ, मेरे ही साइन चलेंगे, वो इनको सामने भी नहीं आने देते. So we are trying to change that. We are trying to change that. We are motivating. आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अगर देखा हो तो HT ने भी स्टोरी कवर की थी. विमेन, पंजाब विमेन की वॉलंटियर्स की टीम है. They are right now living in that Kisan protest at Singhu border, and they are taking care of the special needs for the women. जो उनके सैनिटरी से रिलेटेड हैं, टॉयलेटरी से रिलेटेड हैं, वो सब वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी टीम है विमेन विंग की यहाँ पर पंजाब में, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. एंड दे, ऐसा भी नहीं है कि वो ऑल अर्बन विमेन है, रूरल विमेन एंड दे आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी डाउन टू अर्थ एंड ट्राइंग टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन अ पंजाबी. So we are hopeful. Yes, if these kind of people and these kind of like ऐसे राइज होगा अगर पार्टी में, तो बिल्कुल उनको चांसेस भी मिलेंगे अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के. जी. Thank you so much. Yeah, I had a question, Adi. This is Arun. Yeah, actually, we had previous people coming from Punjab to this call, and I believe each MLA is entitled to about 2 crores to spend in his constituency, and they were complaining that they never got it. Has this been taken care of? Still not. We are trying to raise our voice. We have been trying to escalate that they should be given. And they still not have been given. Okay. You will not believe it that there should be people like who at least we say that there should be a office made for the MLA. It should be in the deputy commissioners or mini secretariats where people can actually come and meet. MLAs have to open their offices by themselves, by themselves. So that is what we need to end. We need to bring in change. There should be more connection and direct connection with the public and the representative. And for that, we need special arrangements. We need special funds so that problems can be solved. And it is still on the agenda. गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है बिकॉज फिर आंसरेबल हो जाएगा ना कि पैसा देना पड़ेगा. ये पैसा अपने तक रखना चाहते हैं जो अभी तक रूल कर रहे हैं. Okay, one more question. Last time in Punjab elections, we were involved. I believe these people, these political parties used to go to the house of the voter and make them keep their hand above the holy book and say that I will vote. How will you handle that thing? See, if you had listened to my conversation earlier, so इसमें ना ये बड़ा there's a very clear cut answer to it. They will try to polarize the things. Yes. But they tried the same. They went a step ahead of that in the previous Delhi elections. They created the total atmosphere of the Shaheen Bagh and all those things. It is अब
जनता को ये बात समझनी जरूरी है. वी नीड टू अवेयर द वोटर दैट rather than these things, what is going to matter is your son getting the job? आपको बच्चे को स्कूल कैसा मिल रहा है, आपके इलाज का क्या इंतजाम है सरकार की तरफ से, आपकी बिजली कितनी सस्ती है, आपकी जो बेसिक्स हैं जो आप चाहते हैं. आधा पंजाब कनेडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो कहते जी वहां पर मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वहां पर पीआर हो जाती है, फिर सब खर्चा फ्री हो जाता है, पेंशन लगती है. यहाँ पर सर बुढ़ापा पेंशन मैनिफेस्टो में लिखी गई 2500 रुपया थ्रू दी 2500 फ्रॉम द कैप्टन फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट. They escalated it from 500 to 750. They've totally went null and void on whatever they promised. And वो भी नहीं मिल रही है. तो आज वो जनता को नहीं मैटर करता है. आप आज उनके सामने लेके जाओ होली बुक, वो कहेंगे ठीक है, वी रिस्पेक्ट दी होली बुक, बट यार हमारा घर खत्म हो रहा है, चूल्हा नहीं है, खाने को नहीं है, तो हमें तो भाई जो काम करेगा वो चाहिए. तो हमें ये एक चेंज हमें लेके आना होगा. वी नीड टू ब्रिंग इन दैट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट स्टार्ट वोटिंग फॉर वर्क, स्टार्ट वोटिंग फॉर, stop voting on religion, stop voting on caste. Until unless we do that, we will always suffer. So this is what people have. अब पंजाब में मैं आपको एक वीडियो है, आई सेंड इट टू जसवंत भाई और अरुण भाई, के वहां पे प्रोटेस्ट में लोगों से पूछा जा रहा है, दे आर सेइंग कि हमने बहुत बार गलती कर ली है, दारू के लिए वोट करके, एक बोतल के पीछे वोट करके, इस बार नहीं करेंगे. वो सब लीडर भाग गए हमें आज मरने के लिए, छोड़ने के लिए, इस बार हम सोच के वोट करेंगे. So we are going by that word and we hope that the people of Punjab realize that, and it is very they will try to play their dirty tricks of all these things. तो हम उनको वो अपनी लेके जाएं, अपनी religious aspect लेके जाएं. We will take the solutions and work aspect and let's see who wins. हेलो गगनदीप जी, नमस्कार. मैं विनोद शर्मा बोल रही हूँ बर्कले से. हमें बड़ी खुशी हुई आपको सुन के, बड़े अच्छे ख्याल आता है आपके. लगता है अब कुछ चेंज जरूर आएगी पंजाब की हालत में, और हम आपको 100% सपोर्ट करते हैं. आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं. यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो पुराने टैक्टिक्स हैं उसको खत्म करना चाहिए, ये भी एग्री करते हैं. लेकिन लेडीज का इश्यू भी अच्छा है, उनको भी इन्वॉल्व करें, घर घर जाके वो भी कुछ हेल्प कर सकती हैं. आपके सारे मैनिफेस्टो में जो भी लिखा है हमें बहुत पसंद आया सबको. हम बहुत प्राउड हैं आपके ऊपर. थैंक यू. तो अब ये बात है कि जो फार्मर्स की लड़ाई अभी हो रही है उसमें बहुत गलत लोग चढ़ रहे हैं मंच के ऊपर और बहुत पॉइंट आउट कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, डिवाइड करने की बातें कर रहे हैं, रिलीजन की भी बातें कर रहे हैं. यू आर राइट, ये सब तो नहीं होना चाहिए. लेकिन आपके ख्याल में अब कैसा है वहाँ, क्या अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? इतने दिनों से बेचारे बैठे हैं बाहर फार्मर्स, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी वहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है, so it is a very pious movement until unless it stays with the किसान unions. अगर किसान यूनियन इसको लीड करेगी, उनके लीडर्स इसको लीड करेंगे और मैनेज करेंगे, तो it will stay a किसान thing. What people are trying to do is there are parties who know how to derail this movement. So what they are trying to do is there are people from agencies that are being sent to be part under what you can say जो उनके अपने मुंह पे वो लगा के मुखौटे लगाकर किसी भी तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. And they try to bring in the religion color over there. They try to raise slogans that like जो उकसाते हैं लोगों को. तो उसके लिए जो किसान आगू हैं वो बहुत ही विजिलेंट है. उन्होंने इस चीज का बिल्कुल नोटिस लेते हैं और जहां पर भी ऐसी कोई बात दिखती है वो उनको बार कर देते हैं वहां से स्टेज के लिए. There were some certain characters who came in and tried to sabotage the stage, and they tried to route the total movement to a different direction. Now those people have been barred from the stage. They are not allowed to speak from the stage.
That is why the Kisans are saying that we will not allow any religion or political party to lead our stage or use our stage. So जब तक ये मेंटेन रहेगा तो तब तक बहुत अच्छा रहेगा. सेकंड बात, अगर आप बात करें प्रोग्रेस की, अभी तक एक लॉज पास किए गए एंड द पीएम एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वर प्रेजिंग द लॉज लाइक एनीथिंग. दे सेड कि हमने बिल्कुल परफेक्ट लॉज पास किए हैं. अब ये प्रोटेस्ट हुए, आज पूरा किसान, ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, एंड आई हैव इवन हर्ड दैट पीपल आर नाउ कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु. So there are plenty of people who are coming in to the capital of the country to raise voice. तो अब जब negotiations हुए तो लास्ट 5 दिसंबर की मीटिंग में इनका जो कैबिनेट था, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, ही अग्रीड कि ये पॉइंट्स फ्लो में हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे. तो सबसे पहली बात ये आती है कि जिसके लिए ये पहले आज से कह रहे थे कि ये परफेक्ट है, आज ये अमेंडमेंट के लिए रेडी हो गए. तो इसलिए आज अब ये भी खुद मानने लग गए कि इनमें फ्लॉज हैं. तो अब अगर इसमें फ्लॉज हैं तो फिर वो होता है ना कि बात कहते हैं कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जो आदमी बेच रहा है अगर उसको पता लग जाए कि मेरे कपड़े में प्रॉब्लम है तो अब ये अब तो फिर लेने वाले पे है ना मर्जी कि मैंने लेनी है कि नहीं लेनी. सो व्हाट आई थिंक इज दे शुड अंडरस्टैंड दैट उन्होंने, इनका पुराना ये सिस्टम रहा है, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन की, इन्होंने जनता के फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, आरबीआई के गवर्नर थे रंजन जी, उनसे बगैर पूछे इन्होंने अपनी तरफ से इशू किए, बैकफायर किया इनको. इन्होंने जीएसटी किया. दीज वर ऑल गुड पॉलिसीज but they were not implemented in a good way. The people who will be affected, they were not taken into consideration. They did not do the technical R&D on that. यही चीज इन्होंने इस लॉज पे भी की है. So if they realize their mistake, they should take it back, talk to the farmer wings, then come out with some very good laws, some good things with जिससे फायदा हो. क्योंकि आज की डेट में जो ये लॉज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपको जो किसान है ही विल हैव नो नेगोशिएटिंग पावर्स विद द कॉर्पोरेट्स. ये कह रहे हैं हम आपकी ओपन मंडी कर देंगे, जो पंजाब का किसान है वो चंडीगढ़ जाके बेचे, वो हरियाणा में जाके बेचे. हमारे पंजाब के किसान के ये हाल है कि उसको अपने खेतों से मंडी तक लेके जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी मुश्किल लगती है. ही डज नॉट हैव स्टोरेज फॉर हिज क्रॉप. आप उसको बोल रहे हैं कि वो चंडीगढ़, दिल्ली और बेंगलोर लेके जाएगा अपनी फसल. हाउ इज दैट पॉसिबल? वन. सेकेंडली वो ये कह रहे हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम लेवल पे सुनवाई होगी, आप कॉर्पोरेट्स के साथ करेंगे डील. फार्मर जो 2.5 एकड़ से बिलो है 60% तो वही है, वो पढ़ा लिखा नहीं है. वो एक कंपनी से कैसे नेगोशिएट करेगा प्राइस पे? अगर उसकी बात ना सुनी गई, कंपनी तो अपना लॉयर लगा देगी कि ये फार्मर कहाँ से लेके आएगा. इसकी क्या सुनवाई है? नेगोशिएटिंग पावर नहीं है. जो बड़े लोग मंडी बनाएंगे वो अपनी स्टोरेज कर लेंगे, प्राइस की क्रॉप की शॉर्टेज होगी. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी रेक्टिफाइड. सो दे नीड टू सिट एंड टॉक ऑन दैट. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर द आपके जो ख्यालात हैं, जो आप दुनिया में बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं. आई थिंक यू शुड कंटिन्यू एंड वी सपोर्ट यू very much. Thank you. Thank you, Gagan. And it was really pleasure to know all the details and information from the ground, and your experience is really valuable to us. So अभी जाते जाते हमारे लिए कुछ मैसेज, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं, हमारी कैसी हेल्प चाहिए, जाते अगर कोई मैसेज हो तो जरूर बताइए. What I believe, sure Arun, what I believe is that all the people who are sitting abroad, all the Indians that are sitting abroad, they are the essence of this country. You all people have brought us proud. You've been doing good things. You've earned name in foreign lands, and I believe कि हम में से हमारे दिल में जो जितना भावना होती है देश के लिए, आप में उससे थोड़ी ज्यादा ही होती है. आप लोग दूर बैठे हैं फिर भी सोचते हैं देश के बारे में, तो ये बहुत एक बड़ी बात होती है. और आप हमसे बेटर वेल इमोशनली कनेक्टेड होंगे देश से, ये हम इमेजिन कर सकते हैं. तो हम बस ये चाहते हैं कि जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनको अवेयर कीजिए.
हमें रोज लोगों को अवेयर करना है खुद के लिए, जागने के लिए. You people are living in countries where you know that what kind of things actually matter in life. What does development of a country, industry, good living structure, ये सब चीजें कैसे अचीव की, क्या थॉट प्रोसेस रखना होगा, ये आप जितने भी लोगों को अवेयर कर पाए. अपना टारगेट लेके चलिए कि हम दिन में 5 लोगों से इस बारे में अपने घर पे, इधर जो इंडिया में रहते हैं रिलेटिव से, उनसे बात करेंगे. सेकेंडली, कीप पोस्टिंग थिंग्स. नाउ इज द डे टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, तो यू हैव अ वेरी गुड टूल, उस पे बात कीजिए. तो सेकेंडली एक मैं ये बात करूंगा कि अपने कंट्री के लिए गुड फील कीजिए. यू शुड ऑलवेज फील गुड. सो मैं एक बात आप करते हैं, बट मैं ये बात बताता हूँ कि जैसे हम लोगों को ना कहीं ये लगता था कि शायद पंजाब की वो स्पिरिट जो पुराने टाइमों में, जो लोग आपके यहाँ पंजाब से गए होंगे या यहाँ पर जिन्होंने पुराना पंजाब देखा है, जो यहाँ का माहौल होता था, जो आपसी प्यार होता था, जो फुलकारियां होती थी, गबरू होते थे, वो सारी चीजें हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वो स्पिरिट लॉस्ट हो गई है. पर इस प्रोटेस्ट से जब मैं वहां पर गया तो मैंने जो वहां पर माहौल देखा, मेरे को अपने पंजाब की खुशबू आई. वहां से दिल्ली में पंजाब की खुशबू आई. मेरे को ये लगा कि नहीं, अभी पंजाब जिंदा है. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि अभी वो है सब कुछ. यहाँ के बच्चों में भी दम है, बुजुर्गों में भी दम है. हम सब अगर एक होकर एक अच्छी आवाज लगाएंगे और अपने लोगों को ये समझाएंगे कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है. अगर हम उनको समझाएंगे कि अच्छी नौकरी करना अच्छा काम है, फ्री रहना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, बेटर से काम करो, लड़कियों को बराबर मौका दो, ये सब चीजें हमें समझानी होगी. अगर हम ये अपना पार्ट करते रहेंगे तो हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे. तो ये एक सेपरेट आपका वो हो जाएगा एम कि एजुकेशन पे जोर दें, सब लोगों को उनकी लैंग्वेज में समझाएं. कई लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है. तो जो लोग हैं जो गलत मलत बोलते हैं उनको बंद करें बोलना, वो भड़का रहे हैं, उनको हार्म ना कर रहे. कुछ बहुत मुश्किल है. कट कर रहा हूँ, बट बहुत लोग ना प्रोपोगंडा को फोन कर जाते हैं. उनको अगर वो लिटरेट होंगे और वो जानते होंगे, वो थोड़े एजुकेटेड होंगे, अवेयर होंगे, तो वो इनके फॉल्स एजेंडाज में फंसेंगे नहीं. तो हमें उनको अवेयर करना होगा. हाँ, ये बहुत बड़ा जरूरी बात है कि उनको असली बताएं कि 1 + 1 = 2, नथिंग एल्स. क्योंकि वो बड़ी जल्दी कैरिड हुए चले जाते जो भी लोग होते हैं. ये गलत बात. बिल्कुल. Thank you so much, Gagandeep. It was really a pleasure to talk to you, and we learned a lot, and we will continue doing what we are doing, and we are all in this together. Adi, this is Pankaj. I just wanted to put in a word here that it was a fantastic show that you put together. The questions were fantastic. Gagandeep ji did a great job. You came across very sincere, Gagandeep ji, and we wish you all the success. And Ali, what a great show you put together. Thank you. Thank you for Jaswant ji, for Arun bhai, everybody. Yeah. Let's go out and win. Thank you so much. Thank you so much. I thank the whole Aapka radio team that you gave me such an opportunity to speak at such a platform, that I could connect with various brothers, my elders sitting in abroad, and I could put across my thoughts. And in case if I said something that is hurtful to anyone, that I apologize in advance, and I hope that we are able to make a better India. So that's wishes from my side. Thank you so much, Anu. We are very proud. Thank you so much, Ji. Thank you, Gagan bhai. Thank you, everyone.